بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چھٹی ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال بھی شامل تھے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا تھا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا اور اس کے تکبر و غرور نے اسے گھناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا، اور اس کو یہ جنون طاری ہوا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ناکام کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا کہ اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ حملہ نہ کر سکا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گھیر کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ثمامہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعے کے چند دنوں بعد ثمامہ بیت اللہ کی زیارت کرنے مکہ معظمہ روانہ ہوا تاکہ بتوں کی پوجا کرے اور ان کے نام پر قربانی کرے۔ جب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب راستے ہی میں تھا تو مجاہدین اسلام کے ایک گروپ نے جو مدینہ کی نگرانی پر مامور تھا ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ اسے پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ ثمامہ بن اسال ایک نڈر جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا۔ پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پیارے دوستو، قید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس بات نے ثمامہ جیسے مغرور بادشاہ کو اسلام لانے پر مجبور کیا، مکمل واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ یہ واقعہ انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا ستون کے ساتھ قیدی بندہ ہے۔ خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان و شکوہ، سطوت اور شہرت ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، کہا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی؟ کہنے لگا تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ، تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسن و جمال کا پیکر ہیں، دوبارہ ثمامہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ میں نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ یہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے ابھی تک مدینہ والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ثمامہ نے جواب دیا تمہارا چہرہ کیا دیکھوں؟ پیارے دوستو، یہ ہے شان رحمت للعالمین کی۔ جب بے آسرا تھے تب بھی شکن نہیں ڈالی، آج تاجدار تھے لیکن پیشانی پر شکن نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نکاح ڈال لو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ اب زمین سہمی پڑی تھی، سب منتظر تھے کہ دیکھیں آج اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔
लोगों ने देखा, कायनात ने देखा, आसमान ने देखा, मस्जिद नबवी ने देखा, उस सतून ने देखा जिसके साथ समामा बंधा हुआ था। अब हुक्म सादिर होगा, उसकी गर्दन उड़ जाएगी। मगर हमेशा मुस्कुराने वाले पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। फरमाया, जाओ, हमने इसे छोड़ दिया, चले जाओ, हमने उसे रिहा कर दिया। हम तुझे कुछ नहीं कहते, तू बड़ा आदमी है, बड़े मुल्क का हुक्मरान है, तो नहीं देखता हम तुझे क्या कहेंगे। जाओ और अपने सहाबा कराम को, जिनकी तलवारें समामा की गर्दन काटने के लिए बेताब थीं, उनको कहा, बड़ा आदमी है, इज्जत के साथ ले जाकर इसको मदीना से रुखसत कर दो। उन्होंने छोड़ा। पलटते हुए उसके दिल में ख्याल आया, बड़े हुक्मरान भी देखे, महकूम भी देखे, जर्नैल भी देखे, करनैल भी देखे, सदर भी देखे, कमांडर भी देखे, इतने हौसले वाला तो कभी ना देखा। उसके चेहरे को देखूं, है कैसा? फिर नजर उठाकर देखता है तो देखकर सर पट भागता है। और फिर आगे क्या होता है ये समामा ही से सुने। वो कहता है, कदम आगे की तरफ भाग रहे थे, दिल पीछे की तरफ भाग रहा था। 2 मील भागता चला गया और जितनी रफ्तार से गया था उससे दुगनी रफ्तार से वापस पलट आया। 2 जहान का बादशाह नंगी जमीन पर अपने सहाबा के साथ बैठा हुआ था, अपने यारों के साथ नंगी जमीन पर बैठा हुआ था। सिहने मस्जिद पर जैसे ही पहुंचा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह डाली। सामने समामा खड़ा है। फरमाया, हमने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर आ गए। समामा कहने लगा, मुझको अपना बनाकर छोड़ दिया, क्या असीरी है, क्या रिहाई है। छोड़ा तब था जब आपका चेहरा नहीं देखा था, अब आपका चेहरा देख लिया, अब जिंदगी भर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया हूं। समामा ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के सामने बुलंद आवाज से कलमा शहादत पढ़ा। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, और गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फिर मोहब्बत भरे अंदाज में यूं बोले, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, आज मेरे लिए कायनात में तमाम चेहरों से महबूब तरीन चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है। अल्लाह की कसम, आज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर दुनिया के तमाम शहरों से ज़्यादा बुरा मालूम होता था, और आज ये मुझे तमाम शहरों से ज़्यादा महबूब दिखाई देता है। फिर उसके बाद दर्द भरे लहजे में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैंने आपके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का बेदरीग खून बहाया है। भला मेरे इस जुर्म का मदावा कैसे होगा? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समामा, घबराइए नहीं, इस्लाम पहले सब गुनाहों को मिटा देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खैर व बरकत की बशारत दी जो अल्लाह सुबहाना व तआला ने इस्लाम कबूल करने की बदौलत उसके नसीब में लिख दी। ये सुनकर जनाब समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का चेहरा खुशी से तिमतमा उठा और यूं कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैंने अपने ज़माना जाहलियत में जिस कदर मुसलमानों को कत्ल किया है उससे दुगना ज़्यादा मुशरिकीन को तहो तय करूँगा। अब मेरी जान, मेरी तलवार और जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके दीन की खिदमत के लिए वक्फ है। फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त हो तो मैं उम्रा अदा कराऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्रा ज़रूर अदा करें, लेकिन इस्लामी तालीमात की रोशनी में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्रा अदा करने का तरीका भी समझा दिया। हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इजाज़त मिलने के बाद उम्रा अदा करने के लिए रवाना हो गए। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आपने बाआवाज़ बुलंद तलबिया के कलमात कहने शुरू कर दिए, जिसका तर्जुमा है, हाजिर हूँ इलाही, मैं हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, सब तारीफ़ें और नेमतें तेरी हैं और हुकूमत भी तेरी, तेरा कोई शरीक नहीं। दोस्तों, तारीख़ बताती है कि हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले मुसलमान हैं जो मक्का मुअज़्ज़मा में बाआवाज़ बुलंद तलबिया कहते हुए दाखिल हुए। कुरैश ने ऊंची आवाज़ में जब ये कलमात सुने तो उनके गुस्से की कोई इंतहा न रही। सब लोग तलवारें हाथ में लिए घरों से बाहर निकल आए ताकि उस शख्स को गिरफ्तार कर सकें जिसने मक्का में आकर उनके अकायद के खिलाफ सरेआम कलमात कहने की जुर्रत की। जब कुरैश की कौम समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास पहुंची तो समामा ने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में तलबिया कहा। कुफार असलहा तान कर खड़े हो गए। कुरैश में से एक नौजवान नेज़ा लेकर आगे बढ़ा
लेकिन दूसरों ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये तो यमामा का बादशाह समामा बिन असाल है। बाखुदा अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो उसकी कौम हमारी इक्तसादी इमदाद बंद कर देगी और हम भूखों मर जाएंगे। कौम ने यह सुनकर अपनी तलवारें न्याम में डाल लीं और हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से महवे गुफ्तगू हुए। कहने लगे, समामा तुझे क्या हुआ? क्या तुम बेदीन हो गए हो? क्या तुमने अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया? समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैं बेदीन नहीं हुआ बल्कि मैंने तो उम्दा दीन को इख्तियार कर लिया है। और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, अब सरजमीन नजद में से उस वक्त तक तुम्हारे लिए गंदम का एक दाना नहीं आएगा जब तक कि तुम मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार ना कर लोगे। रिवायात में आता है कि यमामा से गल्ले की तरसील बंद हो गई तो मक्का में कहत पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। मुशरिकीन कुरैश ने एक वफद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना भेजा कि मक्का के लोग अनाज के एक एक दाने को तरस रहे हैं। वो जो दुनियाई इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, अहले मक्का की बेबसी और लाचारी पर कैसे खामोश रह सकते थे। समामा बिन असाल को पैगाम भेजा कि इन लोगों पर रहम करो और इन्हें गल्ले की तरसील जारी कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तरसील जारी कर दी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए और आम लोग दीन इलाही से इज्तमाई और इनफरादी तौर पर मुनहरिफ होने लगे, उधर मुसल्लमा कज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया और अपनी कौम बनु हनीफा को अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देने लगा। तो हज़रत समामा बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसल्लमा कज़ाब के मुकाबले में उतर आए और अपनी कौम से कहा, ए बनु हनीफा, इस अंधेर नगरी से बच जाओ जिसमें कोई नूर की किरण नहीं है। बाखुदा जिसने मुसल्लमा कज़ाब की दावत तस्लीम की, ये उसकी इंतहाई बदबख्ती होगी, और जिसने उसकी दावत को तस्लीम ना किया वो यकीनन सादतमंद है। और फरमाया, ए बनु हनीफा, तुम बाज आ जाओ, मुसल्लमा कज़ाब के शैतानी दाव से बचो। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा और न उनकी नबूवत में कोई शरीक है। फिर उसके बाद उनके सामने सूरह मोमिन की ये कुरानी आयात तिलावत फरमाई, जिनका तर्जुमा है, इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब व दाना की तरफ से है, जो गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला और सख्त अजाब देने वाला और साहिब करम है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ फिर कर जाना है। और उनसे यूं दरियाफ्त किया, भला ये तो बताओ कि अल्लाह ताला के इस पाकीज़ा कलाम के मुकाबले में मुसल्लमा कज़ाब की इस फजूल अबारत की क्या हैसियत है? ए टराने वाले मेंढक, किस कदर तू टराता है, ना तो किसी को पीने से रोकता है और ना ही पानी को गदला करता है। इसके बाद समामा बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी कौम के उन लोगों को जमा किया जो इस्लाम पर मजबूती से कायम थे और मुर्तदीन के खिलाफ जिद्दोजहद और रुए ज़मीन पर एलाए कलमतुल्लाह के लिए मैदान में उतर आए। दोस्तों, तारीख बताती है कि हज़रत समामा बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़िंदगी भर अपने दीन के वफ़ादार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए अहदो पैमान के पाबंद रहे और मुसल्लमा बिन कज़ाब के ख़िलाफ़ जहाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व तआला समामा बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस्लाम और मुसलमानों की जानिब से जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जन्नत में उन्हें वो इकराम व एज़ाज़ नसीब हो जिसका वादा अहले तक़वा से किया गया है। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।